So my dear friends, welcome to my channel. Today we will read the important formulas for JEE. There are total 1300 math formula as you are seeing here. It's written over here. The contents of this chapter of this video, it's basically today in this present video number 1 or part 1 video of maths 1300 maths formula. I will try to cover as much as possible, at least the first chapter, number sets. It's already compiled together of class 11th and 12th, so it's easy for you when you are going to appear exam. It will be easy on your part. So let us start. First, in number sets, the first chapter, the first formula. Before going towards it, first see over here the basic thing. What are the set identities? Sets A, B, C. Okay, the universal set is represented as I. Okay, commonly U is represented as I over here. Complement A dash, we pronounce it as A dash. Proper subset, A is subset of V. See the symbol. C is C like symbol. Then empty set or null set is a circle and a crossover there. Then union of sets, A union B, you can see it represented like this, U shaped. Intersection of sets, reverse U, A intersection B, difference A by B, division type symbol. Okay, so now for first formula, normally A is always the subset of I. I is the universal set. A is subset of itself too. A is equal to B. The condition, if A is subset of B and B is also the subset of A. Then empty set, phi is a subset of A. Union sets, X such that X belongs to A or X belongs to B. C is equal to A union B. Then see in this figure, you can see A and B. Then commutative law, A union B is equal to B union A. Associative law, usually A plus B plus C is equal to A plus B plus C. In the same way, A union B union C in bracket is equal to A union B union C. Then intersection of sets. See, the C part is the intersection part. Then intersection of set, C is equal to A union B. Then commutativity here too. A is C. Commutative thing is like that. So something plus, minus, division into. You may add anything. A is plus B is equal to B plus C. A minus B is equal to B minus C. Same way, A intersection B is equal to B intersection A. Associative, A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. Then the next 11th number formula, distributive law. C, A union B union C is equal to A union B intersection A union C. Normally, how do you do that? Suppose if it's written A plus bracket, it's written suppose it's written B C into, then how will you write it? A plus B, okay, and A plus C too. Same way here, A union B intersection C is A union B, multiply first, then A with C, A intersection C, intersection A union C. Then A intersection B union C is A intersection B union A intersection C. Idempotency, this is a law actually, okay. A union A is always A intersection A is also always A. Then domination factor, A intersection phi is also phi, and A union I, which is universal set, it is also I. Then identity, it is also a law. A union phi is equal to A intersection I is equal to A. Then complement is always A dash, represented as A dash, where X is not equal to A dash is never equal to A, but it belongs to any number present in a universal set. Complement of intersection and union, A union A dash is equal to I, A intersection A dash is equal to phi. आप हर किसी में एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं. ओके, देन A union B complement is equal to A intersection complement B intersection complement, means A complement intersection B complement. A intersection B whole complement is equal to A complement. Easy technique. If यहाँ पे
ए यूनियन बी है देन फॉर्मूला में इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा. देन डिफरेंस ऑफ सेट्स सी इज इक्वल टू बी बाय ए where x is not belonging to A but is belonging to B. The main motive of mine to share this video with you all guys is that सबको प्रॉब्लम होता है फॉर्मूला याद करने में. हर चैप्टर का इतने सारे फॉर्मूला, 11th 12th इतने सारे बुक्स, 12th में 2 बुक्स. सो एक जगह पे जितना भी फॉर्मूला हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, सब एक जगह पे लिखने से वो इजी होता है. तो सब तो आइडिया नहीं पाते कहाँ से क्या करें, कुछ नहीं, सबको पाना है मेडिकल्स, जेई एस्पिरेंट्स एंड ऑल दोस. सो इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दोस आई मेड दिस. इट विल बी इजियर ऑन योर पार्ट. सो जस्ट सेट्स ना, हाँ सेट्स चैप्टर का बस इतना ही फॉर्मूला है, 30 40 50 जो भी है. देन सेम वे. सो आज सेट्स चैप्टर डिसेबल करेंगे. टोटल शायद इसमें कुछ देख लेते कितने हैं. 64 है. 64 formulas are present here. हम लोग थे डिफरेंस ऑफ सेट्स कंप्लीट किया. देन 19 नंबर. लेट्स सी कितना जाता है. देन b by a is equal to b by a intersection b. Okay. Then b by a is equal to also b intersection a complement. a by a is phi also. A by B is equal to A if A intersection B is phi. Then A by B intersection C is equal to A intersection C by B intersection C. A complement is equal to universal set I by A. Then Cartesian product C is equal to A cross B. X, Y both are elements such that X is belonging to A and Y is belonging to B. अगर सुनो, ये एक important चीज़ है. अगर Cartesian product में यहाँ पे x belongs to A and y does not belongs to B होता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? A क्रॉस B कॉम्प्लीमेंट. B कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू B. सो सेम वे. फिर सेट्स ऑफ नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे n, होल नंबर्स n नॉट, इंटीजर्स को z, पॉजिटिव इंटीजर्स को z प्लस, नेगेटिव को z माइनस, रेशनल नंबर्स को q, रियल नंबर्स को r, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को c. So natural numbers, counting numbers. n is equal to 1, 2, 3. Natural numbers कौन होता है? पूरा infinity तक. पर natural numbers -1 ये सब नहीं डालना. 1 से infinity तक. Whole numbers 0 से infinity तक, which is n naught, represented as n naught here denoted. You can write, usually we write w, denoted here as n naught. Then integers, whole numbers and their opposites and 0. देखो यहाँ z plus पॉजिटिव इंटीजर्स n इज इक्वल टू 1 to n इन्फिनिटी तक. z माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 फिर वहां से चलेगा, पर नेगेटिव है इसलिए -1 में स्टॉप हो गया. तो z कितना होगा? z माइनस यूनियन एक्सेप्शन इज 0 बिकॉज पॉजिटिव में भी 0 नहीं लिख सकते एग्जैक्टली और माइनस में भी नहीं लिख सकते, इसलिए 0 को एक्सक्लूड किया. जो नंबर को एक्सक्लूड किया जाता है वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स में. So z minus union exception is 0, union z plus is minus infinity से infinity तक. Okay. Then rational numbers, repeating or terminal decimals. Q is equal to x is z, x is equal to a by b, where x is belonging to z, b is belonging to z, but b is not equal to 0. b 0 कैसे भी होगा? अगर b 0 हो जाएगा, something by 0 is what? Infinity. इन्फिनिटी तो होगा नहीं रेशनल नंबर, इसीलिए रिपीटिंग नंबर हमको चाहिए. तो b नॉट इक्वल टू 0. इरेशनल नंबर्स, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. अब यहाँ पे देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है. यहाँ पे जो फिगर है ये अच्छा फिगर है. रियल नंबर्स, यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, कॉम्प्लेक्सेस x प्लस आई वाई, आई इमेजिनरी यूनिट होता है. ओके, यहाँ पे देखो 0, 1, 23 and all these numbers. Natural numbers are 1, 23, 100, 1000. You can write anything. But 1 से infinity तक. Whole numbers में कौन जाएगा? 0 से infinity. तो whole numbers में 0 को बस extra 0 है और natural numbers सब हो जाएंगे whole numbers. Integers में देखो, whole numbers natural numbers को भी include करता है, इसलिए उसको ब्लू में इंडिकेट किया है. उसके अंदर whole numbers और natural numbers को इंक्लूड किया गया है.
और ऐड क्या किया गया है, -7। नेगेटिव नंबर्स को भी इंटीजर्स में लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स। रेशनल नंबर में फ्रैक्शनल नंबर्स लाइक 0 पॉइंट समथिंग, 0.66 या 2/5, 17/37, यू कैन राइट रेशनल नंबर्स। देन वो उसमें इंटीजर्स भी जाता है, होल नंबर्स भी जाता है, नेचुरल नंबर्स। देन रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में हर किसी नंबर होता है। इरेशनल नंबर्स में भी देखो सॉरी, पाई, रूट ओवर ऑफ पाई मीन्स रूट ओवर ऑफ 3.14, देन रूट ओवर ऑफ 5, 2 का क्यूब रूट and all these including rational integers, whole numbers, natural numbers, but the king of numbers, the complex numbers, सब उसके अंदर जाते हैं। 1 - 4 इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं होता है, 2 + 3i 2i सब जाते हैं उसके अंदर। तो हो गया 33। अब 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 को जाएंगे बेसिक आइडेंटिटीज जो कि जरूरी है। रियल नंबर्स ABC, एडिटिव आइडेंटिटी a + 0 = a। यहाँ पे 0 काम करता है एडिटिव आइडेंटिटी की तरह से। एडिटिव इनवर्स यहाँ पे -a वो काम कर रहा है, क्योंकि a के साथ क्या ऐड करे तो 0 मिलेगा, a के साथ प्लस माइनस ऑफ a। और क्या कर सकते हो, a प्लस माइनस ऑफ b करने से तो a माइनस b हो जाएगा ना। फिर कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन हमने बताया था आपको, a + b = b + a - b = b - a, वो सब होता है कम्यूटेटिव। a/b = b by a, एवरीथिंग। एसोसिएटिव ऑफ एडिशन, a + b + c = a + b + c। डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन देखो, कभी भी सब्ट्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं, ये वाला टर्म में ऐसे ही बस लिख देते हैं a - b, पर ऐसे एक्चुअली गलत होता है, क्योंकि किसी किसी केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखने से a प्लस ब्रैकेट में -b लिखने से वो इजी होता है, वो बहुत जगह में फिजिक्स में भी आपको काम आएगा, वैसे लिखना हमेशा सब्ट्रैक्शन के टर्म्स को। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, a × 1 = a, यहाँ पे 1 इज वर्किंग एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हियर 1/a, और a कभी 0 मत करना, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो a × 1/0 हो जाएगा तो खत्म। ये a × 0 0 हो जाएगा, वैसे नहीं होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, और a × इन्फिनिटी कुछ नहीं आएगा। इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a × 1/a = 1, ठीक है, 0 मत करना। मल्टीप्लिकेटिव टाइम्स 0, a × 0 = 0। कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, a × b = b × a। फिर 42 कंप्लीट है, 43 नंबर फॉर्मूला। एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सी सेम, प्लस माइनस इंटू डिविजन हर में सेम होता है, बस सिंबल ही अलग होता है, प्लस के जगह पे प्लस, माइनस के जगह पे वैसे। डेफिनेशन ऑफ डिविजन भी देख लिए, डिविजन। अब आए कॉम्प्लेक्स नंबर 1.4। Natural number n, imaginary unit is denoted as I, complex number z, real part is a and c, imaginary part is bi, di, modulus of a complex number is r, r1, r2, arguments are denoted as in this symbol, okay। फाइ इसको प्रोनाउंस मत करना, फाइ हो अगर आपको उसमें कंफर्टेबल हो तो वैसे कर सकते हो, पर ठीक है, साई करो तो अच्छा होगा, ठीक है, साई 1, साई 2, साई 3 ऐसे करो, ठीक है। सो i⁻1 i, ये है बेसिक यूनिट। i⁻i² होता है -1, i³ होता है -i, वैसे i⁴ होता है 1। हमेशा याद रखना, ये वाला यूनिट जो लिखा हुआ है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जूम किया है मैंने। i⁴n + 1 हमेशा i होगा, i⁴n + 2 -1 होगा, 4n + 3 -i, 4n, सपोज एग्जाम्पल ले लो, n को 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो 4 × 1 क्या है, 4 + 1 5, i⁵ क्या है, देखो i⁵ i है, और यहाँ पे देखो i⁴n + 1 i⁵ i है, वैसे i⁶ - 1 यहाँ पे 2 लॉग वैसे होगा, ऐसे कंटिन्यू हो सकता है। 200 300 एनसीईआरटी बुक्स में दिया होता है, सॉल्व करने के लिए देख लेना। z = a + bi, ओके। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैरी आउट होता है, ये है कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस इज अ फिगर कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखो आई रियल एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, एक्स एक्सिस रियल एक्सिस, तो ये फिगर देख रहे हैं आप। तो ये वाला फॉर्मूला, हर वीडियो आपको जो भी फॉर्मूला जब भी इम्पोर्टेंट है पॉज कर लो, लिख लो, नोट कर लो, या कुछ भी कर लो, पर हमेशा हमको याद रहना चाहिए।
सो 49th नंबर a प्लस बी आई प्लस सी प्लस डी आई इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी होल इंटू आई। आई को कॉमन लेके हर टर्म को ऐसे मत लिखना, ए प्लस बी आई माइनस सी प्लस डी आई को ऐसे ही छोड़ देना, ए प्लस बी आई माइनस सी माइनस डी आई, ऐसे मत लिखना। बी माइनस डी को मीन्स आई को कॉमन लेके बी माइनस डी ऐसे लिख लेना, तो इजी होता है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए माइनस सी इज अ रियल पार्ट और आई इज द इमेजिनरी पार्ट। सो व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ओवर हियर, बी माइनस डी जो आई के साथ अटैच होता है, और ए माइनस सी रियल पार्ट। देन ए प्लस बी आई सी प्लस डी आई इंटू क्या है, तो ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी होल इंटू आई, ये आता है। हमेशा हम रट्टे मार ले, जो लोग नहीं मारते तो हम लोग क्या करते, ए इंटू सी प्लस ए डी आई देन बी आई सी देन आई स्क्वायर बी डी, फिर आई स्क्वायर के जगह पर माइनस माइनस बी डी, ऐसे क्यों करें ऐसे, ए सी माइनस बी डी प्लस कॉमन फॉर्मूला लिख लेने से, सपोज हमको कुछ भी दिया रहता है तो हम लोग निकाल सकते हैं इजीली ना, इसलिए। तो फिर डिवाइड करने से देखो क्या होता है, ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू आई। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स ए प्लस बी आई मॉड इज इक्वल टू ए माइनस बी आई, ए आर कॉस साई बी आर साइन साई, थीटा मत पढ़ो साई पढ़ो। फिर तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट पोलर रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर रिप्रेजेंटेशन तुम नॉर्मली एनसीईआरटी में पढ़ लो अच्छे तरीके से, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 आर डी शर्मा में भी दिया गया है, पर ये मैं जस्ट बेसिक फॉर्मूलाज में आज बता रही हूँ और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो जीरो से ए और जीरो से बी आई, ए प्लस बी आई हम लोगों का नॉर्मल क्या होता है, ए प्लस बी आई मैंने आपको बताया है। कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, जेड प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ऐसे बोलते हैं। तो इसको जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आई यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखो द मिडिल मैग्नीट्यूड जो एंगल लिया गया है तो वो है यहाँ पे डिनोट किया गया है आर से, इट इज डिनोटेड बाय आर, और एंगल इज टेकन एज फाई हियर, फाई एंगल लिया गया है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं हम लोग, ए प्लस बी आई इज इक्वल टू आर कॉस फाई प्लस आई साइन फाई, आर होल इंटू कॉस फाई प्लस आई साइन फाई, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी हो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। मॉडुलस आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, आर निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर का मॉडुलस ले जाना, नेगेटिव कभी आना नहीं चाहिए इसलिए उसका मॉडुलस ले जाना। और आर्क टैन बी बाय ए होता है एंगल निकालने के लिए, फाई हो साई हो जो भी निकालना है, थीटा हो जो भी हो, आर्गुमेंट के लिए टैन बी बाय ए हमेशा यूज करना। थीटा फाई साई जो भी है वो निकल जाएगा, आर निकल जाएगा तो वैल्यू पुट कर सकते हो, कॉस जो भी निकलेगा प्लस आई साइन उतना हो गया, और आर के वैल्यू पुट कर देना तो ए प्लस बी आई निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो आपको प्रोडक्ट इन पोलर रिप्रेजेंटेशन देखो, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू R1 R2 कॉस साई 1 प्लस साई 2 प्लस आई साइन साई 1 प्लस साई 2 हुआ। कॉन्जुगेट नंबर्स इन पोलर रिप्रेजेंटेशन देखो मॉड लेके किया गया है। हमेशा कॉन्जुगेट कैसे लेते, सपोज a माइनस बी का कॉन्जुगेट लेना है तो a प्लस बी हो जाएगा। वैसे कॉस साई प्लस आई साइन साई का कॉन्जुगेट यहाँ पे दिया गया है आर कॉस ऑफ माइनस फाइव प्लस आई साइन ऑफ माइनस फाइव, क्या होता है ये माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, आर कॉस फाइव माइनस आई साइन फाइव। वैसे इनवर्स ले जाओ, इनवर्स लेने से भी वैसा ही आएगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर नंबर सेट्स में बस इतना ही फॉर्मूला है। आई बेट यू फ्रेंड्स this is the only basic formulas and no more formulas you will need to solve the basic questions। और basic तो अगर strong हो जाए और उसके बाद हमेशा वो सब बाकी चीज़ धीरे धीरे strong होता जाएगा। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देती हूँ लोग आपको, देखो जो 2G निकाला था तो वही 3G निकाला होगा ना, और वही 4G निकाला, क्योंकि 2G जो निकाला है उसको मेथड पता है, 1G जिसने निकाला है उसको मेथड पता है कैसे निकाला गया है। तो 1G उसको थोड़ा मॉडिफाई करके 2G निकालेगा, उसको मॉडिफाई करके 3G फिर 4G है। वैसे 5G 6G 7G कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं। तो वैसे ही हमको बेसिक फॉर्मूला याद है, कभी भी रट्टा मत मारो फॉर्मूला को, रट्टा मारने से हम लोग ही मर जाएंगे। रट्टा मारोगे तो मरोगे, क्योंकि बायोलॉजी एक ही सब्जेक्ट है जिसे रट्टा मारने के लिए बोलते हैं, पर वो भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमको कॉन्सेप्चुअली समझना चाहिए।
तो हर सब्जेक्ट को समझो फिर करो। तो लास्ट 4 फॉर्मूला स्क्रीन पे लिखा गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है डी मॉइवर, ये भी एक डी मॉर्गन का जैसा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ये सब नोट कर लो। पावर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वोशिएंट इन पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, फॉर्मूला nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे के क्या है 0 से n-1 तक। यूलर्स फॉर्मूला ऐसे होता है e⁻�ix cos x प्लस i sin x। हाँ, हर फॉर्मूला को समझो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, देखो, इलुस्ट्रेट करो, हाँ हो रहा है तब करो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए नंबर सेट्स के लिए इतना हो गया। मैं हर चैप्टर के लिए बताऊंगी, डोंट वरी। 11th-12th में जेई के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैं वह सब बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अलजेब्रा का फॉर्मूलाज। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड।